ओके, सो इसके वॉल्यूम 2 सर्जरी पेपर है। 46-year-old female underwent hysterectomy. Histopathology shows intact parenchyma and cellular outlines. तो अगर आपके साथ सेलुलर आउटलाइंस इंटैक्ट होंगे तो ये आपके साथ होगी कोगुलेटिव नेक्रोसिस. Coagulative necrosis is caused by degeneration of structural protein and enzyme, leading to preservation of the cell structure outline for several days, although the cell itself is dead. A patient presents with sudden severe epigastric pain, labs showing increased amylase level, type of necrosis in involved organ. तो पेशेंट को सडन एपिगैस्ट्रिक पेन है और इंक्रीज्ड एमाइलेज है, पैंक्रेटाइटिस की तरफ जा रहा है, तो पैंक्रेटाइटिस में आपको फैट नेक्रोसिस मिलती है. ठीक है. सर्जन प्लान रेडिकल नेफ्रेक्टमी ऑफ द पेशेंट. ऑन पोस्टीरियर अप्रोच ही इज़ बाउंड टू इनकाउंटर. तो नेफ्रेक्टमी पे पोस्टीरियर अप्रोच पे आपको क्या चीज़ मिलेगी? 12th rib मिलेगी, ऑप्शन बी. ठीक है. 12th rib इज़ द लैंडमार्क rib forming the superior boundary of the operative field during a posterior or flank approach to the kidney. Patient has a history of MI now presents with lesion in the brain affecting motor function. तो ब्रेन इन्वॉल्व है, ब्रेन में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है. ठीक है. अच्छा, फिर आपके साथ है सर्जिकल रेजिडेंट गेट्स नीडल स्टिक इंजरी. ही इज़ नॉट श्योर अबाउट हिज वैक्सीनेशन स्टेटस. Risk of hepatitis B infection for him is, तो this is 27%. ठीक है. अच्छा, patient present with the signs of intestinal obstruction. Lab shows deranged LFTs and RFTs and neutropenia. Immediate appropriate step management में क्या होगा कि आप उसको रेसिसिटेट करो, NG ट्यूब पास करो और कैथेटराइजेशन करो. पेशेंट जब भी एक्यूट एब्डोमेन के साथ प्रेजेंट करेगा और सिस्टेमिक डीअरेंजमेंट भी होगी तो आपने उसमें रिससिटेशन एंड स्टेबलाइजेशन करनी है पहले. ठीक है, बिफोर एनी इमेजिंग और सर्जरी. बुपीवोकेन टॉक्सिसिटी अर्लीस्ट साइन क्या होता है? तो ये आपके साथ रिंगिंग इन द ईयर्स कॉज करवाती है. द इनिशियल सिम्टम ऑफ CNS टॉक्सिसिटी फ्रॉम लोकल एनेस्थेटिक आर circumoral numbness, tongue tingling, and auditory disturbance like ringing in the ears, which is called tinnitus. तो ये सारे काम आपके साथ बुपीवोकेन करवाता है. circumoral numbness, टंग की टिंगलिंग करवाता है, ऑडिटरी डिस्टर्बेंस like tinnitus. Patient presents with altered bowel habit, weight loss, and perrectal bleed, suspected of colon carcinoma. तो कोलॉन कार्सिनोमा का मार्कर क्या है? दैट इज CEA. ठीक है. विच स्ट्रक्चर इज लाइंग डीपेस्ट इन द पोप्लीटल फोसा. तो पोप्लीटल फोसा में डीप आपको पोप्लीटल आर्टरी नज़र आती है. ठीक है. 18-year-old girl recently married, 2 weeks of amenorrhea, abdominal pain and tenderness. On ultrasound free fluid is noted. तो ये इसका की पॉइंट है. फ्री फ्लूइड आपको अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ रहा है. दिस मीन्स दिस इज़ अ रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ठीक है. ट्रायड ऑफ एमेन्यूरिया, पेन एंड साइंस ऑफ इंटरनल हेमोरेज इन अ रिप्रोडक्टिव एज फीमेल. आपके साथ रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है. 46-year-old female had left MRM, now presents with mild swelling of the left arm and loss of sensation in the upper arm. Scapula is also deformed. Nerve involved, तो scapula deformed है. इसमें आपके साथ serratus anterior which is supplied by the long thoracic nerve. ऑप्शन सी. scapula जब भी आपके साथ मेंशन होगी, ठीक है, तो आपने जो है serratus anterior और long thoracic nerve को माइंड में लाना है, जो आपके साथ विंगिंग ऑफ scapula कॉज करवाती है. इस सिनेरियो में आपके साथ damage to the lateral thoracic nerve during axillary clearance denerves the serratus anterior. अच्छा, RTA patient with right humerus fracture, paresthesia over the portion of upper arm, flattening of the muscle and anterior dislocation of the shoulder. तो shoulder anterior dislocate हुआ है. ठीक है. तो इसमें आपके साथ axillary nerve will be involved.
ठीक है। कॉमनली इंजर्ड इन शोल्डर डिसलोकेशन, एक्सिलरी नर्व की बात कर रहे हैं कि कॉमनली शोल्डर डिसलोकेशन में आपके साथ इंजर होती है, और प्रॉक्सिमल ह्यूमरल फ्रैक्चर्स में ये आपके साथ कॉज करती है सेंसरी लॉस ओवर द lateral shoulder and paralysis या atrophy of the deltoid muscle flattening. अच्छा, patient presents with nerve injury having loss of abduction the arm in 15 degree nerve pass through the quadrangular space, which of the following nerve involved? अच्छा, patient जो है आपके साथ presents with nerve injury having loss of abduction the arm in 15 degree, तो supraspinatus है, नर्व पास थ्रू द क्वाड्रेंगुलर स्पेस। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि क्वाड्रेंगुलर स्पेस के अंदर कौन सी नर्व पास होती है, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी, एक्सिलरी। एक्सिलरी नर्व आपके पास क्वाड्रेंगुलर स्पेस के अंदर पास होती है, इनर्वेट करती है डेल्टॉइड को, विच इज़ द पोस्टीरियर मसल फॉर एबडक्शन बियॉन्ड द 15 डिग्रीज। 15 to 90 आपके साथ डेल्टॉइड करवाता है, अप टिल 15 आपके साथ सुप्रास्पाइनेटस करवाता है। Surgeon perform various varicose surgery while flush ligation. अच्छा, saphenous vein in flush ligation, do saphenous vein there is gush of dark color blood, source of bleeding is most probable from, तो आपके साथ वेरिकोस सर्जरी कर रहा है, इसमें फ्लश लाइगेशन दी सेफेनस वेन में, तो उसमें गश ऑफ डार्क कलर ब्लड आया। ये डार्क कलर ब्लड आपके साथ कहाँ से आया है, तो इट इज़ फ्रॉम द फीमोरल वेन, इट इज़ फ्रॉम द फीमोरल वेन ऑप्शन। अच्छा, ये आपके साथ फीमोरल वेन से भी होगा, ठीक है। फीमोरल वेन जो है आपके साथ लाइज डायरेक्टली डीप टू द ग्रेटर सेफिनस वेन एट द सेफिनो-फीमोरल जंक्शन, एंड एक्सीडेंटल डीप कट अगर उसको लग गई तो इट during flush ligation breaches the major deep veins causing massive hemorrhage. अच्छा, फिर है 3 months old baby presents with respiratory difficulty, ABGs पे pH लो है, PCO2 ज़्यादा है, तो दिस इज़ respiratory acidosis, bicarb is also less, ठीक है। तो ये आपके साथ हो गया acute respiratory acidosis, ठीक है। acute respiratory acidosis आपके साथ pH कम है, एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, PCO2 ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दिस इज़ रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। व्हाट इज़ द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ बुपिवकेन टॉक्सिसिटी, तो बुपिवकेन अर्लीस्ट आपके साथ क्या करता है, रिंगिंग इन द ईयर्स। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंट्स विद फीवर एंड लेथार्जी, इन्वेस्टिगेशन पे आपको बायलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी नज़र आ रही है, और नॉन केसिएटिंग ग्रैनुलोमा, तो नॉन केसिएटिंग ग्रैनुलोमा आपको सार्कोइडोसिस में मिलती है, केसिएटिंग इन द टीबी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद है हाँ, 55 year old male presents with retching but no vomiting, attempts of NG tube insertion tried but failed, most probable cause of this obstruction। 55-year-old को retching हो रही है, vomiting नहीं है, और आप NG ट्यूब इंसर्शन कर रहे हो लेकिन वो फेल हो रही है, तो इसका प्रोबेबल कॉज क्या है, दैट इज़ योर गैस्ट्रिक वॉल्वुलस, ठीक है। वॉल्वुलस जब भी होगा तो इट क्रिएट्स अ क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें वो नीचे चीज़ आपके साथ बंद हो जाती है, लीडिंग टू इनएबिलिटी टू पास एन NG ट्यूब, एंड क्लासिक सिम्टम्स है आपके साथ ड्राई रैचिंग विदाउट वॉमिटिंग, ठीक है। इसको हम बुचार्ड्स ट्रायड भी कहते हैं, बुचार्ड्स ट्रायड। During endoscopy, a patient is found to have metaplasia and intestinal mucosa in the lower part of esophagus. This condition significantly increases the risk of developing which malignancy, तो आपके साथ मेटाप्लेजिया हुई है इन द लोअर एसोफेगस, तो लोअर एसोफेगस में आपके साथ एडिनो का कार्सिनोमा होता है, अपर 2/3 में आपके साथ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगी। पेशेंट विद क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया started on a new drug and experienced lightheadedness and dizziness, and ECG changes show QRS widening and crescendo decrescendo murmur,
विच एंटी मलेरियल ड्रग इज़ द कल्प्रिट। तो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया है, न्यू ड्रग शुरू किया जिसकी वजह से लाइट हेडेडनेस, डिजीनेस वगैरह आ गए। क्यूआरएस वाइडनिंग है आपके साथ, क्रेसेंडो डी क्रेसेंडो मरमर है। क्रेसेंडो डी क्रेसेंडो आपको एमवीपी में आई गेस मिलता है, और एओर्टिक स्टेनोसिस है। अच्छा, शोज क्यूआरएस वाइडनिंग, तो ये आपके साथ है क्विनीन। क्विनीन क्या करता है, ये क्लास 1A, ये क्विनिडीन के साथ रिलेटेड होता है, जो आपके साथ क्लास 1A एंटी एरिथमिक है, ठीक है। और ये आपके साथ डोज डिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ सोडियम चैनल्स that manifest as QRS widening and prolonged QT interval. अच्छा, the P3 segment of posterior cerebral artery which gives rise to the medial and lateral posterior choroidal artery is located in which cisterna? So they are located in your quadrigeminal cistern. P3 segment of PCA आपके साथ travel करता है around the midbrain and it is situated in the quadrigeminal cistern. ठीक है, तो बस ये याद रखना है, P3 सेगमेंट ऑफ PCA जो है आपके साथ क्वाड्रिजेमिनल सिस्टर्न में होती है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद राइट साइडेड इंग्वाइनल हर्निया, कफ इम्पल्स पॉजिटिव बट डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट इज़ नेगेटिव। तो राइट साइडेड हर्निया है, कफ इम्पल्स इज पॉजिटिव, डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट इज नेगेटिव। विच एनाटॉमिकल लैंडमार्क इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हर्निया? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर्निया को का लैंडमार्क इज़ योर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल के मीडियली आपके साथ डायरेक्ट होता है, इसके लेटरली आपके साथ इनडायरेक्ट हर्निया होती है। अच्छा, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स इनडायरेक्ट में हर्निया आर लेटरल टू द वेसल, डायरेक्ट में दे आर मीडियल टू them. 16-year-old girl presents with HMB. Lab shows severe anemia with HB of 4, MCV 68, MCH 18. What is the most likely diagnosis? तो 16-year-old girl है, she has HMB. She shows severe anemia with HB of 4, MCV 68. HB भी कम है, MCV भी कम है, MCH भी कम है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की तरफ जा रहा है। 18-year-old recently married with 2 weeks of amenorrhea, presents with pain abdomen and tenderness. Ultrasound suggests free fluid. तो free fluid in the cavity हमने पढ़ा कि it is ruptured ectopic pregnancy. Patient presents with ureteric stone having referred pain to the groin and scrotum. तो groin और scrotum की बात आ गई, तो इसमें ilioinguinal nerve, इसमें आपने स्क्रूटम की बात है, ग्रॉइन और लॉइन में आपके साथ इलियो इंग्वाइनल और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक होता है। लेकिन अगर आपके साथ स्क्रूटम की बात आ जाए तो वहाँ पे फिर जेनेटोफिमोरल होता है, ठीक है। इट सप्लाइज द स्क्रूटम एंड कैरीज विसरल एफरेंट फ्रॉम द अपर यूरेटर। तो लॉइन और ग्रॉइन में इलियो इंग्वाइनल, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, और ताए और स्क्रूटम में आपके साथ जेनेटोफिमोरल। Hirschsprung disease is characterized by the absence of ganglionic cells in the distal bowel. Which segment of the colon is always involved in this disease? So that is your sigmoid colon. A young male patient having unilateral submandibular swelling that is associated with pain usually felt after eating or anticipation of food. What is the most likely diagnosis? तो इसका most likely diagnosis आपके पास है सियालोलिथिएसिस, ठीक है। जब भी आपके साथ यूनिलैटरल सबमैंडिबुलर स्वेलिंग होगी, इसका मतलब कोई सियालोलिथ है, ठीक है, विच इज एसोसिएटेड विद पेन फेल्ट आफ्टर ईटिंग, तो दिस इज सियालोलिथिएसिस, ठीक है। स्टोन है, ठीक है, वहाँ पे सियालोलिथिएसिस का क्या मतलब है कि सिम्टम ऑफ सेलिवरी ग्लैंड स्टोन इज़ द एपिसोडिक स्वेलिंग। इसमें एपिसोडिक स्वेलिंग होगी, सिवियर पेन होगा, और सलेवा प्रोडक्शन जो है आपके साथ स्टिमुलेटेड होगी बट ब्लॉक्ड। MHC का काम क्या है? इट इज़ इम्यून सर्वाइवल, इसमें नहीं है तो आपने फिर लिखना है इम्यून प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर इम्यून सर्वाइवल हो पहले आप वो करो,
लेकिन वो ना हो तो प्रेजेंटेशन आप लिख सकते हो। द फंडामेंटल रोल ऑफ MHC मॉलिक्यूल क्लास 1 and 2 is to bind and present for foreign and self peptides to T lymphocytes, thereby initiating or regulating adaptive immunity. 30-year-old female patient having CRF renal osteodystrophy exhibit low serum calcium and high phosphate. What is the most appropriate treatment to correct this imbalance? तो उसका जो है उसको लो सीरम कैल्शियम है, हाई फॉस्फेट है। पीटीएच नॉर्मली आपके साथ फॉस्फेट को कम करता है और कैल्शियम को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कैल्शियम कम है और फॉस्फेट हाई है, तो इसमें फिर भी आपने पीटीएच नहीं देना क्योंकि उसको रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी CRF वगैरह है, ठीक है, और हाइपोकेलीमिया हाइपोकेल्सीमिया वगैरह है। सो यू हैव टू गिव कैल्सीट्रायोल। ये आपके साथ विटामिन डी डिफिशिएंसी की तरफ जा रहा है। द फेलिंग किडनी कैन नॉट कन्वर्ट विटामिन डी टू इट्स एक्टिव फॉर्म, ठीक है। कैल्सीट्रायोल डायरेक्ट सप्लीमेंटेशन विद कैल्सीट्रायोल इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड सप्रेस सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो ये आपके साथ विटामिन डी कन्वर्ट नहीं कर सकता। फेलिंग किडनी का मतलब है कि विटामिन डी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म, तो हम इनको सप्लीमेंटेशन देते हैं कैल्सीट्रायोल से, तो वो आपके साथ इंटेस्टाइनल कैल्शियम और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगा और आपके साथ सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को कम करता है, ठीक है। यंग मेल पेशेंट हैड कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा अंडरवेंट ट्यूमर रिसेक्शन। द पैथोलॉजी रिपोर्ट confirms clear proximal and distal margins. The primary surgeon is concerned because the report is lacking information about which crucial factor leading to local recurrence. So that is your option number B, circumferential margin of the tumor, ठीक है। circumferential margin of the tumor, proximal या distal margin आपके साथ important है। the circumferential margin आपके साथ critical predictor of local recurrence in rectal and some colon cancer. It measures the closest distance between tumor and the cut edge of the mesentery serosa. A 4-year-old boy with anterior neck swelling which moves along the protrusion of the tongue. तो protrusion of the tongue के साथ जो move करेगा tongue की swelling, that is your thyroglossal duct cyst, ठीक है, या thyroglossal duct। अच्छा, फिर है यंग RTA पेशेंट प्रेजेंट्स इन द ईयर विद ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा, हीमोपेरिटोनियम, अ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द लिवर कैप्सूल एंड लिवर पैरेन्काइमल, लेसरेशन ऑफ अबाउट 4 सेंटीमीटर। तो ये आपके साथ 4 सेंटीमीटर लिवर जो है उसमें लेसरेशन है, ये ग्रेड 3 आपके पास आता है, ठीक है। ग्रेड 3 लिवर इंजरी ये हमारे एग्ज़ाम में भी आया था और मैंने तुक्के से ग्रेड 3 इसमें लिखा था। तो ग्रेड 3 आप याद रखो कि अगर 4 सेंटीमीटर होगा तो उसमें यू हैव टू राइट ग्रेड 3, ठीक है, 3 सेंटीमीटर और डीपर। अच्छा, तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने वैसे अपनी माइंड में ये बनाया था कि ग्रेड 1 में आपके साथ कोई लेसरेशन नहीं होगी, ठीक है। ग्रेड 2 में आपके साथ थोड़ी बहुत अप टिल 1 to 2 सेंटीमीटर लेसरेशन आ सकती है। ग्रेड 3 में 4 सेंटीमीटर हो गया और ग्रेड 4 में लाइक इससे ज़्यादा होगा, मे बी 6 सेंटीमीटर तक होगा, तो दैट इज़ ग्रेड 4 और उससे आगे ग्रेड 5। ग्रेड 3 में 3 सेंटीमीटर और डीपर होगा और सबस्केपुलर हेमाटोमा स्पैनिंग 10 to 50% of the surface area. After tonsillectomy, patient suffers from diminished movement of the soft palate. On examination, there is absent gag reflex and glottis opening is impaired. तो absent gag reflex है, glottis open भी नहीं हो सकता, ठीक है, और diminish movement of the soft palate है। तो इसमें आपके साथ कौन सा नर्व होगा? मुझे तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है। एब्सेंट गैग रिफ्लेक्स, ग्लॉटिस ओपनिंग नॉट इज़ इम्पेयर्ड, ठीक है। ये आपके साथ ग्लोसोफेरिंजियल नर्व क्यों है? क्योंकि इट प्रोवाइड सेंसरी इनर्वेशन टू द टॉन्सिलर बेड एंड एफरेंट लिम्ब ऑफ द गैग रिफ्लेक्स
It is highly susceptible to injury during tonsillectomy, and damage often involves nearby branches of cranial tin affecting the palate and glottis. फिर है an RTA patient with chest trauma has open lacerated wound, reduced chest movement on affected side, and there is hyperresonant node on percussion. तो हाइपर रेजोनेंट नोड आपको न्यूमोथोरैक्स में मिलता है, ओपन न्यूमोथोरैक्स में। अच्छा, ये ओपन क्यों है कि पेशेंट को चेस्ट ट्रॉमा हुई है, ओपन लेसरेटेड वाउंड है, ठीक है, रिड्यूस चेस्ट मूवमेंट ऑन द अफेक्टेड साइड और हाइपर रेजोनेंट भी है। तो ओपन न्यूमोथोरैक्स में इज़ डिफाइंड बाय अ लार्ज डिफेक्ट इन द चेस्ट वॉल दैट अलाउज एटमॉस्फेरिक एयर टू एंटर द प्लूरल स्पेस डायरेक्टली। तो ओपन इंजरी होगी जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर डायरेक्टली प्लूरल स्पेस में जाती है, तो it often result in sucking sound and the physical finding of the air in the pleural space. अच्छा, patient after RTA had penetrating wound to the chest. On examination there is tracheal deviation to the opposite side, distended neck veins and hypotension. What is the type of pneumothorax? तो patient को penetrating wound है to the chest, there is tracheal deviation to the opposite side. तो ये आपके साथ ट्रोमेटिक या टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो गया, ठीक है। occurs when air is trapped in the pleural space, increasing pressure to the point where it collapses the lung and shifts the mediastinum, leading to tracheal deviation. तो ओपन न्यूमोथोरैक्स में एक ओपन डिफेक्ट होगा जिसकी वजह से चेस्ट मूवमेंट डिक्रीज होंगे ऑन द अफेक्टेड साइड, और हाइपर रेजोनेंट तो सारे न्यूमोथोरैक्सिस में होगा। अच्छा, इन RTA accident patient presents with fracture of the sternoclavicular joint that is dislocated posteriorly. तो sternoclavicular joint posteriorly dislocate हुआ, which vital or structure deep to the joint is at greatest risk of injury? तो आपके साथ that is your option number A, trachea, ठीक है। ये जॉइंट के पीछे पहले ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के बाद आपके ट्रैकिया के पीछे आपको एसोफेगस नज़र आता है, ठीक है। तो फर्स्ट एट ग्रेटेस्ट रिस्क इज़ योर ट्रैकिया। पोस्टीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, अगर स्टर्नोक्लेविकुलर पोस्टीरियर डिस्लोकेट हो गया तो द मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल मूव्स बैकवर्ड, ठीक है। तो बैकवर्ड वहाँ पे क्या चीज़ है, देयर इज़ ट्रैकिया इज़ द मोस्ट critical vital structure at risk of compression or laceration। फिर उसके पीछे आपके साथ एसोफेगस पड़ा होता है। तो पहले ट्रैकिया इज एट हाईएस्ट रिस्क। A patient having peptic ulcer disease, he is using PPIs chronically due to the complete suppression of gastric acid production, which substance will show an elevated level in the patient ब्लड सैंपल। तो ब्लड सैंपल में आपके साथ क्या चीज़ एलिवेट होगी, दैट विल बी गैस्ट्रिन, क्योंकि क्रॉनिक PPI यूज़ के साथ हाइपोक्लोरहाइड्रिया होता है, लो स्टमक एसिड, जो आपके साथ रिस्पॉन्ड्स बाय कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटिंग गैस्ट्रिन रिलीज फ्रॉम द G cells इन अटेम्प्ट टू इंक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, ठीक है। तो इसमें गैस्ट्रिन विल बी रिलीज्ड। 36-year-old male with symptoms of dysphagia and weight loss underwent endoscopy, shows mass on the lesser curvature of the stomach. Which of the following is the best approach to confirm the diagnosis of the tumor? तो इसमें बेस्ट अप्रोच का क्या होगा, जब एंडोस्कोपी फॉर अ मास ऑन द लेसर कर्वेचर होगा, सो यू हैव टू डू ERCP, एंडोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी एंड साइटोलॉजी, सॉरी, ठीक है। एंडोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी और साइटोलॉजी करनी है, while CT is essential staging for staging and definitive diagnosis, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आपने क्या चीज़ करनी होगी, यू हैव टू डू एंडोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी एंड साइटोलॉजी। अच्छा, फिर है चाइल्ड एडमिटेड टू द ICU सस्पेक्टेड टू हैव सेप्सिस and blood culture returned positive for Staph aureus and methicillin resistant strain. What is the immediate drug of choice for the treatment? For treatment, ICU में है, he has sepsis, blood culture पे आपको Staph aureus and
मर सा नज़र आ रहे हैं, वैनकोमाइसिन देना है, ठीक है। वैनकोमाइसिन ऑप्शन में ना हो, गिव लिंजोलिड। लिंजोलिड ऑप्शन में ना हो, गिव फ्यूसिडिक एसिड। A patient presents with signs of jaundice and deranged LFT and RFTs. Endoscopy confirmed diagnosis of cholangiocarcinoma. Cholangiocarcinoma is leading to which condition? तो क्लोनोर्कस साइनेंसिस कॉज करवाता है, ठीक है। क्लोनोर्कस साइनेंसिस जो है causes chronic inflammation and proliferation of biliary epithelium, ठीक है। तो ये chronic infection है with liver fluke और आपके साथ chronic inflammation and proliferation of the biliary epithelium cause करवाता है। Patient presents with fever and rash on arm which general inflammatory marker is most likely to be significantly raised, तो significantly raised will be your CRP, ठीक है। आपको inflammatory marker inflammation में CRP gets elevated, ठीक है। फिर है CRP is acute phase reactant जो सिंथेसाइज होता है बाय द लिवर, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड कॉमनली मेजर्ड मार्कर फॉर एक्यूट systemic inflammation and infection. Newborn infant suffers from uncontrolled bleeding for a long time after clamping of umbilical stump. The finding is highly suggestive of a deficiency of which vitamin dependent coagulation factor. तो bleeding from umbilical stump जब भी होगी विटामिन की डिफिशिएंसी सस्पेक्ट करना है, जहाँ पे आपके साथ 2, 7, 9, 10 जो है आपके साथ उनकी डिफिशिएंसी होती है, लेकिन फैक्टर 2 आपके साथ फैक्टर 2 की सबसे ज़्यादा होती है। इन्होंने फैक्टर नंबर 7 लिखा है, सॉरी। सिवियर डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन के फैक्टर में आपके साथ 2, 7, 9, 10 कॉजेज हेमोरेजिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न, ठीक है। जो 2, 7, 9, 10 है हेमोरेजिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न कॉज करवाते हैं। फैक्टर 7 का शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होता है। तो इन्होंने आपसे कहा है कि which of the following is the first and most severely affected leading to prolonged PT and early bleeding symptom, तो वो है आपके साथ फैक्टर 7, ठीक है। तो न्यूबॉर्न इन्फेंट है, he has uncontrolled bleeding for long time after clumping of umbilical stump, उसको फिर भी uncontrolled bleeding है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 7 क्योंकि इट हैज़ द शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ, तो ये आप याद रखें, ठीक है। Newborn baby presents with feature of no subcutaneous fat, dry skin, extensive meconium staining. What is the likely diagnosis reflecting post-term complication? Newborn baby है, he has no subcutaneous fat, dry skin, extensive meconium staining है, ठीक है। तो ये आपके साथ क्या हुआ, फैट वगैरह भी नहीं है, ड्राई स्किन है, मेकोनियम स्टेनिंग है। दिस इज़ योर ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट मेच्योरिटी सिंड्रोम, सही है। पोस्ट मेच्योरिटी सिंड्रोम आपके साथ इट इज़ कैरेक्टराइज बाय फीटल वेस्टिंग, ड्राई स्किन होगा, मेकोनियम एस्पायरेशन होगी या मेकोनियम स्टेनिंग ड्यू टू अ स्ट्रेस्ड इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट। Young patient presents with recurrent epistaxis, a rash around the lips, and a positive family history of grandfather suffering from the same condition. अच्छा, recurrent epistaxis है around lips and positive family history of grandfather suffering from the same condition, तो ये आपके साथ ऑस्लर वेबर रेंडू सिंड्रोम या ऑस्लर रेंडू वेबर सिंड्रोम, ठीक है। ये आपके साथ है ऑस्लर रेंडू वेबर सिंड्रोम, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है जिसमें आपको रिकरेंट एपिस्टेक्सिस, म्यूकोक्यूटेनियस टेलेंजेक्टेजिया और स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री मिलेगी। म्यूकोक्यूटेनियस टेलेंजेक्टेजिया, रिकरेंट एपिस्टेक्सिस प्लस स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री indicates to Osler Rendu Weber syndrome. 2-year-old boy presented with hard testicular mass. इन्वेस्टिगेशन पे आपको रेज्ड AFP मिल रहा है, तो विच जर्म सेल ट्यूमर इज़ द लाइकली डायग्नोज। तो इसके बारे में मैंने आपको कहा था कि AFP भी 3 वर्ड्स है, सैक भी 3 वर्ड्स हैं। तो AFP को सैक से याद रखो, AFP इन योग सैक,
A yolk sac tumor is most common testicular cancer in boys under 3 years old and characterized by the production of high level of tumor marker AFP. Young boy has testicular tumor for which orchidectomy was performed and right testicular vein ligated to prevent सीडिंग ऑफ ट्यूमर। ठीक है, तो राइट साइड वाला आपके साथ कहाँ पे जाता है? राइट साइड वाला जो है, लेफ़्ट वाला तो लेफ़्ट रीनल वेन में जाता है, फिर आईवीसी। राइट वाला आपके साथ डायरेक्टली आईवीसी में जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद सिम्टम्स ऑफ ट्रेमर, वेट लॉस, इंटॉलरेंस टू हीट एंड ग्रिटी सेंसेशन इन द आइज़। तो जब भी ग्रिटी सेंसेशन इन द आइज़ आपको मिला, ये ग्रेव्स डिजीज़ है। ठीक है, वेट लॉस है, उसको हीट इंटॉलरेंस है, हाइपरथायरॉयडिज्म की बात है। दिस इज़ योर ग्रेव्स डिजीज़, जिसमें आपको ट्रेमर्स, वेट लॉस, हीट इंटॉलरेंस मिलता है। और ऑफ्थेल्मोपैथी, ये ग्रीटी आइज़ इंडिकेट करती है ऑफ्थेल्मोपैथी, जो आपको ग्रेव्स में मिलता है। फिर है पेशेंट हैविंग अ disease for which he is taking warfarin. Now he is planned for surgical procedure. How many days before the procedure should be warfarin stopped? तो warfarin को आपने 5 days पहले स्टॉप करना है। ठीक है, ये हमने पिछले पेपर में पढ़ा है। warfarin को डिसकंटिन्यू करना है 5 days पहले। Patient underwent a hemicolectomy and discharge on POD. He suddenly presents to the emergency with sudden shortness of breath एंड कोलैप्स। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो इसमें आपके साथ है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, उसको जो है सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और आपके साथ सर्जरी हुई है, उसके बाद सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और कोलैप्स वगैरह है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ जा रहा है। बट ये पेशेंट विद फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड मल्टीपल सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज सडनली डेवलप डायफोरेसिस, कन्फ्यूजन एंड पेटिकियल रैश। तो इसका कॉज क्या है? द कॉज इज़ फैट एम्बोलिज्म। ठीक है, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हुआ है, उसके बाद उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट वगैरह है। ठीक है, और पेटिकियल रैश। A patient presents to emergency department and a CT had revealed an epidural hematoma. The artery involved in majority of epidural hematoma primary supplies the, तो ये आपके साथ एपिड्यूरल हेमेटोमा सप्लाई करता है द कल्वेरिया ऑफ द स्कल, सॉरी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। इसमें आपके साथ एपिड्यूरल या जिसे एक्स्ट्रा ड्यूरल कहते हैं। ठीक है, इसको आपने एक्सपेंडिंग लेमन से याद रखना है, और जो सब ड्यूरल है उसको सब बनाना। ठीक है, सब बनाना, तो बनाना या क्रीसेंट शेप सब ड्यूरल होता है। एपिड्यूरल इज़ एक्सपेंडिंग लेमन शेप, तो ये आपके साथ लेमन के शेप में होगा। दूसरी बात यह है कि एपिड्यूरल एक्स्ट्रा ड्यूरल में मिडल मेनिंजियल आर्टरी इन्वॉल्व होता है, इसमें मिडल मेनिंजियल आर्टरी इन्वॉल्व होती है, और आपके साथ जो सब ड्यूरल है उसमें आपके साथ सुपीरियर सेरेब्रल वेन्स या ब्रिजिंग वेन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि मिडल मेनिंजियल आर्टरी आपके साथ इट रन्स बिटवीन द ड्यूरा एंड द स्कल। ठीक है, तो इट्स फंक्शन इज़ टू सप्लाई ड्यूरा मैटर एंड द इनर टेबल ऑफ द स्कल, तो दैट इज़ योर कल्वेरिया। अच्छा, follicular cells of thyroid gland which produce T3 and T4 develop embryologically from a median endodermal thickening in the floor of primitive pharynx near which structure? follicular cells of thyroid जो आपके साथ T3 T4 प्रोड्यूस करते हैं, ये डेवलप होते हैं फ्रॉम मीडियन एंडोडर्मल थिकनिंग इन द फ्लोर ऑफ प्रिमिटिव फेरिंग्स नियर विच स्ट्रक्चर, नियर द बेस ऑफ द टंग। ठीक है, तो ये थायराइड ग्लैंड आपके साथ बेस ऑफ द टंग पे बनता है। थायराइड ग्लैंड डिसेंड्स फ्रॉम द फ्लोर ऑफ प्रिमिटिव फेरिंग्स ओरिजिनेटिंग नियर फोरामेन सीकम, ये फोरामेन सीकम के साथ ये ओरिजिनेट होता है एट द बेस ऑफ द टंग पे। अच्छा, पेशेंट विद एफिब इज़ प्रेस्क्राइब्ड प्रोपेनोलोल टू रिड्यूस हार्ट रेट। एफिब है, उसको प्रोपेनोलोल दिया गया है। विच रिसेप्टर प्रीडोमिनेटली फाउंड इन द हार्ट?
तो प्रोपेनोलॉल आपके साथ कौन से हार्ट के रिसेप्टर पे काम करता है? दैट इज़ योर ऑप्शन B1। ठीक है, प्रोपेनोलॉल आपके साथ B1 रिसेप्टर ऑफ द हार्ट पे काम करता है। पेशेंट सफर्स MI, व्हाट इज़ द इमीडिएट मेटाबॉलिक शिफ्ट that occur in cardiac muscle cells during the time of ischemia? So that is your anaerobic glycolysis. Oxygen supply is cut off, ischemia हो गई, cardiac muscle switch from aerobic to anaerobic, जिसकी वजह से lactate build हो जाता है and ATP depletes. Marathon runner है, after fully depleting their muscles and liver, glycogen stores primarily shift to which long term energy source for continued muscle contraction? तो मैराथन रनर जो है जिसमें फुली डिप्लीटिंग मसल्स और लिवर ग्लाइकोजन स्टोर्स आपके साथ डिप्लीट हो रहे हैं, तो ये आपके साथ लॉन्ग टर्म एनर्जी पर आपके साथ लेते हैं फ्रॉम फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से। ठीक है, वन ग्लाइकोजन इज़ डिप्लीटेड, द बॉडी relies on fatty acid oxidation from adipose tissue as primary long-term energy source for the sustained low-intensity exercise. Which key metabolic adaptation during the late stage of starvation to conserve protein and provide fuel for the brain? तो ये आपके साथ है कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन। ठीक है, मेटाबॉलिक एडेप्टेशन ड्यूरिंग द लेट स्टेज ऑफ स्टारवेशन, तो लेट स्टेज ऑफ स्टारवेशन में कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होती है। स्टारवेशन, द लिवर rapidly increases the production of ketone bodies as an alternative fuel source for the brain, dramatically reducing the body dependence on gluconeogenesis. फिर है pregnant lady tests positive for anti-HBC IgM. What does this serological finding specifically indicate? अच्छा, प्रेग्नेंट लेडी को एंटी HBC IgM पॉजिटिव है। ठीक है, एंटीबॉडी अगेंस्ट द कोर दैट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, एंटीबॉडी अगेंस्ट द कोर का मतलब क्या है कि देयर इज़, और इसमें आपको IgM भी दिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये आपके साथ इसका तो आंसर और ऑप्शंस इन्होंने नहीं दिए, लेकिन आप इसमें याद रखो कि जब भी देयर इज़ एंटीबॉडी अगेंस्ट द कोर, ठीक है, तो इसका मतलब है पास्ट इम्यूनाइजेशन हुई है। ठीक है, पास्ट इम्यूनाइजेशन है या रीसेंट इम्यूनाइजेशन भी ठीक आ सकता है। चलो, इसके बारे में एक डायग्राम है, वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में पढ़ा देता हूँ। ठीक है, Which of the following thyroid carcinoma is characterized by rapid, highly aggressive local invasion and widespread metastasis leading to worse prognosis? That is your worst prognosis है anaplastic carcinoma का। ठीक है, सबसे worst prognosis, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्स्ट्राड्यूरल हेमोरेज, तो एक्स्ट्राड्यूरल अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मिडल मेनिंजियल आर्टरी है, लेकिन याद रखना है कि एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ठीक है, आफ्टर हेड ट्रॉमा पेशेंट प्रेजेंट्स विद मोटर वीकनेस ऑन कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द बॉडी विच स्पेसिफिक ब्रॉडमैन एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज इन्वॉल्व्ड। तो हेड ट्रॉमा के बाद मोटर वीकनेस है ऑन कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसमें आपके साथ एरिया 4 इज इन्वॉल्व्ड, एरिया 4, ब्रॉडमैन एरिया 4। जो एरिया 4 है वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को सप्लाई करता है एंड ड्रेनेज here directly result in weakness or paralysis of muscle on the opposite side of the body. A boy presents with epistaxis, sinusitis, recurrent respiratory tract infection and diarrhea. What is the definitive investigation of choice? Epistaxis है, sinusitis है, recurrent respiratory infection है और डायरिया है। ठीक है, तो ये इसमें आप क्या करोगे, ड्यू स्वेट क्लोराइड टेस्ट, ये आपके साथ
सिस्टिक फाइब्रोसिस की तरफ जा रहा है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और डायरिया। तो स्वेट क्लोराइड टेस्ट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेटिव टेस्ट ऑफ चॉइस इज़ योर स्वेट क्लोराइड टेस्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है। मैं भी इसी के पीछे ही घूम रहा था, ठीक है, लेकिन दिस इज़ स्वेट क्लोराइड टेस्ट। फिर है GCS की कैलकुलेशन पे कि एन RTA पेशेंट इज़ असेस्ड ऑन अराइवल इन ER, दे रिस्पॉन्ड टू पेनफुल स्टिमुलस विद इनकम्प्रिहेंसिबल वर्ड्स। तो 2 पॉइंट्स इसके हो गए, ठीक है। एंड एग्जिबिट क्लेम विड्रॉल टू पेन है, एज्यूमिंग देयर आइज डू नॉट ओपन स्पॉन्टेनियसली। व्हाट इज़ द करेक्ट GCS स्कोर? सो दिस इज़ 7। तो ये आप याद कर लो GCS, क्योंकि इस पे हर टाइम MCQ आता है। पेशेंट डायग्नोज विद केस ऑफ CML विथ स्पेसिफिक क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। तो CML में आपको 922 मिलती है, ठीक है। फिर है 922, ठीक है। ये पेज रिपीट था। A patient presents with severe hypokalemia, which characteristic ECG change is most likely to be seen? तो हाइपोकेलीमिया में आपको इन्वर्टेड T वेव मिलता है, टॉल T वेव हाइपरकेलीमिया में मिलता है। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंट्स विद इंफीरियर वॉल MI। तो इंफीरियर वॉल MI में विच मेजर कोरोनरी आर्टरी इज टिपिकली इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्क्शन? तो इंफीरियर MI में आपके साथ RCA इज इन्वॉल्व, ठीक है। एंटीरियर और एंटीरियोलेटरल आपके साथ एंटीरियर लेड होता है, लेटरली LCX होती है। अच्छा, फिर है ओल्ड पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ MI हैज़ वाइट infarct seen on histology. This kind of infarct is typically found in organs in which with which kind of blood supply? तो वाइट infarct मैंने आपको कहा था कि ये आपको मिलेगा आर्टीरियल ऑक्लूजन में, आपको रेड infarct मिलता है वीनस ऑक्लूजन में। पेशेंट प्रेजेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट एब्सेस that was treated with incision and drainage, now presents with yellow greenish discharge from the periareolar region that stains her cloth. What is the most probable reason for the chronic discharge? तो chronic discharge में है duct fistula। ये हमने SK21 के फर्स्ट पेपर में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है। तो आप वो वीडियोस देख लें। 35-year-old female with history of smoking presents with greenish discharge from nipples and nipple retraction। तो greenish discharge आपके साथ जब भी आया तो इसमें आपने याद रखना है डक्टल एक्टेजिया, ठीक है। डक्टल एक्टेजिया आपने greenish discharge के लिए याद रखना है। ये ब्रेस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो मेरे साथ कुछ पिक्चर्स हैं जिससे आपका ये ब्रेस्ट काफ़ी हद तक इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, सबसे पहले आपके साथ मेमोरी डक्ट एक्टीजिया होती है, ठीक है, जिसमें आपको ग्रीन ब्राउन निपल डिस्चार्ज मिलेगा, ठीक है। और इसमें आपको पेरिडक्टल इन्फ्लेमेशन और डायलेटेड मेमोरी डक्ट्स नज़र आएंगे। डक्ट एक्टेजिया में ग्रीन ब्राउन निपल डिस्चार्ज याद रखना है, इन्वर्टेड निपल भी हो सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद है मेमोरी डक्ट एक्टीजिया, तो इसमें आपको ग्रीन ऑरेंज डिस्चार्ज नज़र आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपके साथ फैट नेक्रोसिस होती है ब्रेस्ट में, जिसमें आपके साथ नॉन वायबल एडिपोज टिशू जो है वो रिप्लेस होते हैं बाय स्कार टिशू। ये आपको एक ब्रेस्ट के स्कैन में नज़र आ रहा है। दिस इज़ फैट नेक्रोसिस ऑफ द ब्रेस्ट। मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स होंगे, कैल्सिफिकेशन होगी इसमें मोस्ट कॉमनली ड्यू टू मैकेनिकल ट्रॉमा और रीसेंट हिस्ट्री। तो जाइंट फुल ऑफ कैल्शियम रिसेंटली कट, तो ये आपके साथ ये जाइंट ब्लॉक ऑफ चीज़ जब कट होगी ये आपको फैट नेक्रोसिस में मिलेगी, चीज़ी अपीयरेंस। फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस में आपके साथ इट रेफर्स टू फाइब्रोसिस एंड सिस्ट टिश्यू फॉर्मेशन। प्रीमेनोपॉजल वुमेन में होगी हार्मोन मीडिएटेड, इसमें एपोक्राइन मेटाप्लेजिया का रिस्क नहीं होता, स्क्लेरोजिंग एडिनोसिस का सम रिस्क होता है,
और एटिपिकल हाइपरप्लेजिया का सिग्निफिकेंट रिस्क है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके साथ इंट्राडक्टल पेपिलोमा आता है। तो इंट्राडक्टल पेपिलोमा में आपको ब्लडी निपल डिस्चार्ज मिलेगा। प्रीमेनोपॉजल वुमेन में फाइब्रोवेस्कुलर प्रोजेक्शन दैट आर लैंड बाय द मायोएपिथेलियल सेल्स। ठीक है, तो अगर एक पेशेंट ब्लडी डिस्चार्ज के साथ आया एंड ही हैज़ फाइब्रोवेस्कुलर प्रोजेक्शन लैंड बाय द एपिथेलियल सेल्स, तो इसमें फिर आपने देखना है कि मायोएपिथेलियम है या नहीं। अगर है इट मीन्स इट इज़ इंट्रोडक्टल पेपिलोमा, अगर नहीं है इट इज़ पेपिलरी कार्सिनोमा। ठीक है, ये आपके साथ है मायोएपिथेलियम। ठीक है, ये पिंक, तो ये मायोएपिथेलियल सेल अगर आपके पास है दिस इज़ पेपिलोमा, अगर नहीं है तो इट इज़ कार्सिनोमा। ठीक है, फिर इंट्रोडक्टल पेपिलोमा में जो है आपके साथ पेपिलरी ग्रोथ विद इन द एपिथेलियल सेल्स होती है, ब्लडी निपल डिस्चार्ज होगा। प्रीमेनोपॉजल वुमेन में फाइब्रोवेस्कुलर प्रोजेक्शन लैंड बाय द मायोएपिथेलियल सेल्स। फाइब्रोएडिनोमा में इट इज़ एस्ट्रोजन सेंसिटिव, इसमें आपको एक मार्बल लाइक रबरी मोबाइल मास स्ट्रोमल ग्लैंडुलर बिनाइन ट्यूमर नज़र आएगा, टिपिकली 15 to 35। इसे हम ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं। ठीक है, फेलॉइड्स ट्यूमर जो है ये फाइब्रो एपिथेलियल ट्यूमर है दैट रेंजेस फ्रॉम बिनाइन टू मैलिग्नेंट, लीफ लाइक प्रोजेक्शन इनटू द एपिथेलियल लाइन स्ट्रोमा एंड डायलेटेड ल्यूमेन। ठीक है, लीफ लाइक तो लीफाइल लाइक प्रोजेक्शन। डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू का मतलब है कि नॉट येट इन्वेडेड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसमें कैल्सिफिकेशंस आपको नज़र आएगी। ठीक है, फिर इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा में आपके साथ इट ब्रेक्स थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर इन अ डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा। इसमें मेडुलरी ब्रेस्ट कार्सिनोमा आता है जिसमें आपको सिंशियल शीट लाइक ग्रोथ विद लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट नज़र आएगा। पॉडी ऑरेंज अपीयरेंस आपको मिलती है। ठीक है, इसमें इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कार्सिनोमा भी एक टाइप है जिसमें डर्मल लिम्फेटिक इन्वेजन बाय ट्यूमर सेल्स होती है और उसकी वर्स्ट प्रोग्नोसिस है। लोब्यूलर कार्सिनोमा इनसाइटू LCIS जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन इज़ नॉट इन्वेडेड और इसमें ई कैडहेरिन नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा में भी ई कैडहेरिन नहीं होगा। नॉन कोहेसिव सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिंगल फाइल पैटर्न। ठीक है, मेस्टाइटिस में इन्फ्लेमेशन होती है ड्यू टू स्टेफ ओरियस जिसमें हम डाइक्लोक्सासिलिन देते हैं और कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रेस्ट। ठीक है, फिर है 30-year-old फीमेल हैज़ palpable mass in the right upper outer quadrant of the breast and ipsilateral palpable axillary lymph node. Ultrasound has been performed. What is the next step to confirm the diagnosis? तो इसमें आपने क्या करना है, 30 years है तो 30 years में you do a true cut biopsy। ठीक है, अगर आपने हाई सस्पिशन लाइक एक मास है उसको आपने कंफर्म करना है तो पहले आपने ट्रू कट कोर नीडल बायोप्सी करनी होगी। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद है 36-year-old फीमेल विद बायलैटरल ब्रेस्ट स्वेलिंग एंड सफर्स फ्रॉम साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन दैट वर्सन प्री-मेंस्ट्रुअली। अल्ट्रासाउंड पे आपको डिफ्यूज हाइपर इकोइक चेंजेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो बायलैटरल ब्रेस्ट स्वेलिंग है, साइक्लिक ब्रेस्ट पेन भी है, मेस्टाइटिस है और आपको हाइपर इकोइक चेंजेस नज़र आ रही हैं, तो दैट इज़ योर फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़। फाइब्रोसिस्टिक चेंज में आपको साइक्लिकल मेस्टेल्जिया नज़र आता है, बायलैटरल नोडुलैरिटी होगी और देयर इट विल शो कैरेक्टरिस्टिक cystic and fibrous change. 34-year-old male presents with carcinoma involving mandible. बायोप्सी पे आपको वैक्सी पैरेन्काइमा विद अ डिस्टिंक्टिव मोटर ऑयल अपीयरेंस नज़र आ रही है। तो ये मोटर ऑयल अपीयरेंस आपको एडिनोसिस्टिक कार्सिनोमा में नज़र आती है। ठीक है, ये आप याद रखो कि एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा में आपके साथ क्रिब्रिफॉर्म सीव लाइक पैटर्न होगा,
filled with extracellular matrix that gives waxy oil appearance. तो एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा जो टाइप है सिलिवरी ग्लैंड ट्यूमर का, तो इसमें क्रिब्रिफॉर्म सीव लाइक पैटर्न होगा with an extracellular matrix that gives waxy oil appearance. फिर है bedridden patient. He presents to the ER with sudden onset of shortness of breath. X-ray confirms aspiration of gastric content into the airways. Which segment of the lung is most likely involved? तो आपके साथ एपिकल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब, ये भी रिपीटेड MCQ है, ठीक है। यंग फुटबॉलर प्रेजेंट्स विद नी इंजरी ऑन एग्जामिनेशन, टिबिया ग्लाइड्स एंटीरियरली रिलेटिव टू द फीमर। तो जब टिबिया एंटीरियरली आ रही है, दिस मीन्स दैट इट इज़ ACL टीयर। टिबिया पोस्टीरियर जाती तो दैट वुड बी PCL टीयर, ठीक है। व्हाट इज़ द एक्यूरेट जेनेटिक डेफिनेशन ऑफ कोडोमिनेंस? तो both gene express equally, this is called codominance. Patient presents to hospital with state of shock following hip fracture. What is the most probable immediate cause of shock? तो immediate cause of shock is hypovolemia, क्योंकि जब भी फ्रैक्चर ऑफ हिप होता है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, तो इसमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी सैक्रल प्लेक्सिस रूट? तो सैक्रल प्लेक्सिस का रूट फॉर पोडेंडल नर्व इज S2 S3 S4। फिर है 2-year-old child presents with LRTI for which he was prescribed ampicillin, amoxicillin, aspirin, leading to development of CNS symptoms, Reye syndrome। तो Reye syndrome का causative organism कौन सा है? That is your influenza virus, ठीक है। A patient fell from height and presents with their arm limping on the side of the body, unable to initiate abduction beyond 15 degrees। तो एबडक्शन नहीं कर सकता बियॉन्ड 15 डिग्रीज। कौन सा मसल रिस्पॉन्सिबल है? बियॉन्ड 15 डिग्रीज नहीं कर सकता, 15 तक तो कर सकता है, 15 तक सुप्रास्पाइनेटस करवाता है, उसके बाद नहीं कर सकता। तो दैट इज़ योर, ये आपके साथ डेल्टॉइड है ऑप्शन में, यस। और ये आपके साथ इन्होंने गलत दिया है, ठीक है, ये स्टेटमेंट उन्होंने प्रॉपर नहीं दिया। Unable to initiate abduction beyond 15 degrees। तो beyond 15 degrees अगर नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि डेल्टोइड इज रिस्पॉन्सिबल, कि सुप्रास्पाइनेटस आपके साथ 15 to 30 डिग्री है। अच्छा, द सुप्रास्पाइनेटस मसल इनर्वेटेड बाय सुप्रास्कैपुलर नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द फर्स्ट 15 डिग्री। तो इन्होंने आपसे पूछा है कि फर्स्ट 15 डिग्री नहीं, विच अनएबल टू इनिशिएट एबडक्शन बियॉन्ड 15 डिग्री। तो बियॉन्ड 15 डिग्री अगर नहीं कर सकता तो इसमें डेल्टॉइड आना चाहिए। अच्छा, विच क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस as it is the only antibody that crosses the placenta from mother to a fetus, so that is your IgG। आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस में IgG ही नज़र आती है, ठीक है। फिर है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ EPI the immune system primarily generates peace memory cells. What is the approximate maximum response required for initial exposure for these long memory cells to be formed? So that is 7 days, ठीक है, that is 7 days। 75-year-old male presents with slow growing crusting lesion lateral side of the nose, prone to bleed upon touch, ठीक है। तो ये है crusting lesion on the lateral side of the nose, अगर उसको आप टच करते हो दैट इज़ प्रोन टू ब्लीडिंग, सो दिस इज़ योर बेसल सेल कार्सिनोमा। लेकिन उन्होंने ये चीज़ हाथ पे दी थी, ठीक है, दिस लीजन वाज ऑन द हैंड नॉट ऑन द नोज़। लेकिन आपने फिर भी सेंट्रल अल्सरेशन देखनी है, अगर अल्सरेशन होगी तो यू शुड गो फॉर बेसल सेल कार्सिनोमा। इसमें स्लोली इनलार्जिंग नोड्यूल होता है, सेंट्रल अल्सरेशन होती है। एन ओल्ड पेशेंट, ठीक है, ओल्ड पेशेंट है फ्रॉम कश्मीर, फोरआर्म लीजन दैट इज़ रेडिश इन कलर एंड कैरेक्टरिस्टिकली इवर्टेड मार्जिन। अच्छा, ये था वो दूसरा।
तो अभी कश्मीर से एक बंदा है फोराम पे, उसको लीजन है, रेडिश है कलर में, ठीक है, इवर्टेड मार्जिन है, तो दिस इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा याद रखें। आपके साथ जब भी रेज्ड केराटोटिक अल्सरेटेड लीजन होगा नोज पे तो बेसल सेल कार्सिनोमा होगा, हैंड पे हुआ इवर्टेड रोल्ड मार्जिन के साथ सन एक्सपोज्ड एरियाज में तो दैट इज योर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। A patient presents with decreased vision. Ultrasound shows mass in thyroid as well as mass in pancreas. तो mass in thyroid as well as mass in pancreas में आपके साथ involve is your MEN2B, ठीक है, तो MEN2B इसमें associated होता है, सही है। ये MEN2 के लिए मेरे साथ एक बहुत अच्छा इमेज था, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ये पढ़ा है, ठीक है, तो MEN के बारे में याद रखो। ट्रिपल पी आपके साथ MEN1 में आता है, पैंक्रियास, पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड, ठीक है। MEN2A में आप इससे एक पी लेते हो, पैराथायरॉयड, उसके साथ फियोक्रोमोसाइटोमा और मेडुलरी थायरॉयड कार्सिनोमा, तो ये MEN2A में आएगा, ठीक है। और MEN2B में आपके साथ आता है फियोक्रोमोसाइटोमा, मेडुलरी थायरॉयड, मार्फोनॉइड हैबिटिस और न्यूरोमा, ठीक है। तो ट्रिपल बी MEN1 में आएगा, MEN2A में पैराथायरॉयड, फियो मेडुलरी कार्सिनोमा, ठीक है। पी इसमें फियो से याद रखो कि फियो पैराथायरॉयड और मेडुलरी, और अगर मार्फोनॉइड हैबिटिस आ गए फियोक्रोमोसाइटोमा के साथ, मेडुलरी थायरॉयड कार्सिनोमा के साथ मार्फोनॉइड हैबिटिस की बात आ गई तो आपने इसमें 2B लिखना है, ठीक है। तो ये अभी आप पढ़ लें, उसको जो है डिक्रीज्ड विजन है, मास इन द थायरॉयड एज वेल एज पैंक्रियास, ठीक है। तो ये आपके साथ क्या हुआ, दिस बिकम्स योर MEN2B। अच्छा, फिर है पेशेंट प्रेजेंट्स विद मेटास्टेटिक डिजीज इन द वर्टेब्रल कॉलम, विच प्राइमरी मेलिग्नेंसी इज अमंग द मोस्ट कॉमन टू स्प्रेड टू द बोन, तो जो स्प्रेड होता है टू द बोन दैट इज योर प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। A young female presents with feature including swollen hand, neck, delayed sexual development and short stature, ठीक है, तो इसमें है swollen hands and neck, delayed sexual development, short stature, ये आपके साथ टर्नर है 45X0। Characteristic phenotype of Down syndrome is genetically caused by which genetic mechanism, तो कौन सा जेनेटिक मैकेनिज्म होता है डाउन सिंड्रोम में, that is your over expression of genes। फिर what specific vitamin deficiency causes syndrome known as pellagra, जिसमें डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस मिलता है, तो that is your niacin। When calculating GCS, verbal score given to patient who is able to speak but is confused, तो ये 4 है, ठीक है। A 3-year-old child presents with history of darkening color in the nappy and hormone profile suggest a deficiency of enzyme HOD. The child is suffering from which metabolic syndrome, that is your alkaptonuria, तो ये आसान है। 6-month-old boy brought to the peds by parent with developmental delay, low head circumference, feeding difficulty, distinctive mousy order आ गया तो फिनाइल कीटोनूरिया। फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी आपके साथ हाइड्रोपिक चेंज होता है। पेशेंट प्रेजेंट्स टू अ मेडिकल स्पेशलिस्ट विद बी सिम्टम्स है और उसको सर्वाइकल diagnosed as B-cell lymphoma, so that is caused by your Epstein-Barr virus, जो Hodgkin lymphoma कॉज करवाता है। बर्किट और Hodgkin इको पे कार्डियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व लार्ज फ्रेबाइल वेजिटेशन, लार्ज आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में मिलते हैं। अ यंग पेशेंट फीमेल was prescribed PPI for long-standing GERD, which primary acts as H+ ATPase pump. Its mechanism of action is that it is doing primary active transport। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यंग फीमेल है, PPIs ले रही है,
लॉन्ग स्टैंडिंग उसको गर्ड है, ठीक है। तो ये पीपीआईज एक्ट ऑन एच एटीपीज पंप, इसका मैकेनिज़्म क्या है, दैट इज़ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज जो है ये आपके साथ टारगेट ऑफ पीपीआईज होता है, और ये आपके साथ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक एग्जांपल है, ठीक है। mechanism uses the energy derived directly from hydrolysis to move H plus ion, ठीक है। so for the first lecture of surgery this was enough। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो kindly do subscribe and thanks for watching, see you in the next video।